international. इसके बाद we will discuss the types of diplomacy. What are the different types of diplomacy? In this, there are two broad categories. What are the two broad categories? Number one is called traditional diplomacy and the second is called, जी क्या आप नाम से गैस कर सकते हैं कि अगर एक का नाम ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है तो दूसरे का नाम क्या हो सकता है? आप मॉडर्न कह सकते हैं, इसके साथ करीबी वर्ड है, इट्स कॉल्ड न्यू डिप्लोमेसी और मॉडर्न डिप्लोमेसी. So the two categories of diplomacy are traditional diplomacy or modern or neo diplomacy. Let us understand this. My first question is, what is the difference between traditional and modern diplomacy? आप इसके ऊपर सोच सकते हैं और आपको आंसर मिल सकता है क्योंकि नाम से ही मतलब वाज़े हो जाते हैं. तो दोनों में क्या फ़र्क है? ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी और मॉडर्न डिप्लोमेसी में क्या फ़र्क हो सकता है? जवाब काफ़ी सिंपल है कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी ओल्ड डिप्लोमेसी को कहते हैं एंड द मॉडर्न डिप्लोमेसी इज़ द न्यू डिप्लोमेसी. सो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी मे हैव एग्जिस्टेड इन द older times or you can say a few times back in the past, and the modern diplomacy or the new diplomacy is happening at present. So that's a very simple distinguished or distinction that you can make between these two. So one is old and the other is new. Now my next question is, if traditional diplomacy relates to old diplomacy, then when it may have started? एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इस वक्त मुश्किल है कि आपके जहन में आए, बट आई विल हेल्प यू इन अराइविंग एट आंसर एंड आल्सो दैट यू विल रिमेंबर द आंसर फॉर अ लॉन्ग टाइम थ्रू दिस एक्टिविटी. तो आखिर ये जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है ये कब स्टार्ट हुई होगी, कितने अरसे पहले स्टार्ट हुई होगी? आप डिफरेंट आंसर्स के बारे में सोच रहे होंगे. You may be thinking before the Greeks, before Christ and the old Greek civilization. You may also look at the period before Islam or the period after Islam or the medieval time, जिसको हम Middle Ages कहते हैं. तो आपके जहन में डिफरेंट किस्म के पीरियड्स आ रहे होंगे. एक आसान जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो ये है कि it started with पीस ऑफ वेस्टफैलिया. रिमेंबर पहले भी बताया था कि ये जो पीस ऑफ वेस्टफैलिया है, ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया है, इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है. बहुत से इवेंट्स और एक्टिविटीज़ और फिनोमेना यहाँ के साथ मंसूब हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें एक ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी भी है. उससे पहले डिप्लोमेसी वॉज नॉट वेरी सिस्टमेटिक एंड द किंग वुड सेंड हिज envoy और स्पेशल पर्सन फॉर सेंडिंग मैसेजेस. लेकिन डिप्लोमेसी का जो बाकायदा आगाज़ है वो हुआ है फ्रॉम पीस ऑफ वेस्टफैलिया. एंड यू नो व्हाट इज़ द डेट फॉर पीस ऑफ वेस्टफैलिया? काफ़ी दफ़ा ये साल रिपीट हुआ है. द ईयर इज़ 1648. So after 1648, when the Peace of Westphalia was signed, and we see that these European states start getting independence and they become nation state systems, they take the status of a sovereign state. So they start establishing relations with each other, and the diplomats and the diplomatic offices were set in different countries. तो लिहाजा यहाँ से ये start हो रहा है. But because the Westphalia Treaty was signed in Europe, and at that time Europe was very much developed in these kind of activities, so traditional diplomacy was confined to European states only. ये सिर्फ यूरोप के जो रियासत थे उनके बीच में होती थी, और जो बाकी कंट्रीज हैं वहाँ तक इसका फैलाव नहीं था. It was not extended outside Europe. So traditional diplomacy was confined only to European states. Now, the next question is, when did new diplomacy may have started? अगर
ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी स्टार्ट हो रही है कौन से ईयर से? 1648 पीस ऑफ वेस्टफैलिया. So when would have the modern diplomacy or the new diplomacy may have started? चूंकि नाम से नजर आ रहा है कि ये न्यू डिप्लोमेसी है, this means it would have been very recent, and the recent is basically the beginning of 20th century. 20वीं सदी के आगाज से आपकी न्यू डिप्लोमेसी शुरू हो रही है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि why traditional diplomacy declined during the beginning of 20th century and your diplomacy take over? आखिर क्या वजह पेश आई, क्या ज़रूरत पेश आई कि जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है वो यकसर ख़त्म हो गई और उसकी जगह न्यू डिप्लोमेसी ने ले ली? आखिर कौन सी तब्दीलियाँ आई, आखिर क्या वजूहात थीं जिसकी वजह से ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह न्यू डिप्लोमेसी ने ले ली? आप सोच सकते हैं, आपके जहन में जंग अजीम आ रहा होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, and maybe this may have been one of the cause, maybe, but the actual reasons are something different. Because if we know the difference between traditional and modern diplomacy, then we can easily guess that what were the reasons that were responsible for the growth of new diplomacy. तो उसका एक जो रीज़न है वो ये है, नंबर 1, development of social and political institutions and rise of democracy. People get interested in countries' international relations and foreign policy. तो आप समझ रहे होंगे कि पहली वजह क्या थी, क्योंकि अब जो लोग हैं उनकी दिलचस्पी फॉरेन अफेयर्स में और फॉरेन रिलेशंस में ज़्यादा हो गई है. द पीपल वांट टू नो कि उनकी जो कंट्री है वो किन मुल्कों के साथ राब्ता रख रही है, उनके किन मुल्कों के साथ मुआहदे हैं, एंड हाउ आर दे डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स. सो दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड. Why the people were interested? Because the monarchical forces, the king power was declined. It was replaced by democratic forces. बादशाहों की पावर ख़त्म हो गई है, अब नया ज़माना आ गया है, अब लोग जमहूरियत पसंद हो गए हैं, उनको राइट्स मिलना शुरू हो गए हैं. दे आर हैविंग देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स. उन्होंने खुद अपनी गवर्नमेंट्स को इलेक्ट किया है और अब वो दिलचस्पी रखते हैं. दे आर इंटरेस्टेड कि व्हाट आर देयर गवर्नमेंट डूइंग बिकॉज दे हैव इलेक्टेड देयर गवर्नमेंट बाय देमसेल्व्स. उससे पहले जब बादशाह और शहजादे हुआ करते, सो बिकॉज दे वर नॉट इलेक्टेड, therefore the people were also not interested, and neither the people were told about foreign relations. But now the people are realizing their rights, they are realizing what they should know, they are participating more in the affairs of the state. So this was one of the reasons that why in the 20th century the people get more interested, and as a result the political institutions, जो हमारे सियासी इदारे हैं और जो हमारे माशरती इदारे हैं, उन्होंने भी काफ़ी तरक्की कर ली है, उन्होंने भी काफ़ी कुछ सीख लिया है और लोग अब अपने हकूक़ के बारे में जानना चाहते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड रीज़न, एंड देयर इज़ अनदर वेरी गुड रीज़न. व्हाट दैट रीज़न मे बी, प्लीज़ थिंक. जी, आपको मैं आंसर दे रहा हूँ. द सेकंड रीज़न इज़ द डेवलपमेंट in communication technology such as telephone, television, fax machine, air travel. So can you see that ये 20वीं सदी में और 19वीं सदी के अख्तिताम पे ये मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी इम्प्रूव्ड हो गए और इनका जो इस्तेमाल है वो भी ज़्यादा वसी हो गया. अब लोग ईज़िली कांटेक्ट रख सकते हैं, वो जान सकते हैं, वो टेलीफोन के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए एक स्टेट अपने रिलेशंस दूसरे स्टेट के साथ बहुत आसानी के साथ उस्तवार कर रहा है, उनके साथ अपने रिलेशंस मेंटेन कर रहा है. इसी के साथ फैक्स मशीनें आ गई, एयर ट्रैवल हो गया. एयर ट्रैवल इज़ वेरी फास्ट. नाउ द स्टेट्स
and the diplomats can move very quickly between the states. They can go very quickly and can return back. Even the head of state can go and come back. So as a result, because now there is very easily movement and therefore information can be accessed very easily. आपके पास information का जो जरिया है वो काफ़ी आसान हो गया है. तो जब information इतनी आसानी के साथ मिल रही हो, तो this means that now the traditional diplomacy would be declined, it would be ended, and new diplomacy would be started. इसी के साथ जो मोबाइल सिस्टम है आजकल तो काफ़ी एडवांस्ड हो गए हैं. Now easily the contacts and the information can be taken through mobiles, through emails and through video conferencing, जिसमें आप बंदे की पिक्चर को भी देख रहे हैं और साथ में you're also communicating. So it's audio plus video, and as a result this diplomacy and this means of communication has revolutionized, and therefore this encouraged the introduction of new diplomacy. यहाँ से आपको कुछ अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि what is the difference between traditional and modern diplomacy. We will do this in detail. Let's first of all understand the features of traditional diplomacy. जो रिवायती डिप्लोमेसी है, जो रिवायती सफारतकारी है, उनके फीचर्स, उनके अहम खसूसियात कौन कौन से हैं. The first one is traditional diplomacy was confined to Europe continent only. ये जो पॉइंट है मैंने इसको बाकायदा अंडरलाइन किया हुआ है और फिर इसके बाद नीचे डिटेल्स होंगी. So the first point is that traditional diplomacy was confined to Europe continent only. पहले भी बता चुका हूँ कि जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है वो सिर्फ यूरोप के जो कंट्रीज हैं उनके बीच में ये मौजूद थी, and the other non-European states were not involved. Why? Because it was established, it was originated after the Peace of Westphalia, which was occurred in Europe. So this was only limited to Europe continent and European states only. Now there is a question. The question is, why non-European countries were not involved? आखिर उनको क्यों इन्वॉल्व नहीं किया गया? अगर एक डिप्लोमेसी ट्रेंड बन रहा है और एक डिप्लोमेटिक पॉलिसीज आ रही हैं, so why the other countries which were not in Europe, they were not involved? What may be the reason? You can think over the reason, and the reasons may be very simple. जी, have you think over the reasons? जी, कुछ वजूहात आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही हैं. नंबर 1 इज दैट सम वर कॉलोनीज. जो यूरोपियन स्टेट से बाहर के स्टेट्स थे या कंट्रीज थे, सो सम ऑफ देम वर कॉलोनीज. वो आज़ाद नहीं थे, वो बाकायदा नो आबादियाती ममालिक थे, उनके पास कोई अपना कंट्रोल नहीं था. दे वर अंडर द यूरोपियन पावर्स, देयरफॉर दे कुड नॉट एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस. एक कंट्री जब तक आज़ाद ना हो वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रख सकती. तो गुलाम रियासतें डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते. सो सम ऑफ दोज स्टेट्स, द नॉन यूरोपियन स्टेट्स वर कॉलोनीज. नेक्स्ट, सम वर नॉट मेंटेनिंग फॉरेन रिलेशंस विद अदर स्टेट्स. और जो कुछ थे, so they were not interested in foreign relations with other countries. So this is another reason. And the third is that some of the countries were following a policy of isolation. कुछ countries isolated policy इख्तियार कर रखे थे, जिसका मतलब ये है कि वो तन्हा थे, वो नहीं चाहते थे कि वो बाकी ममालिक के साथ उनका इंटरेक्शन हो. चूँकि दुनिया ने इतनी तरक्की नहीं कर ली थी और लोगों की नीड्स और ज़रूरियात कम थी, इसलिए उस वक्त एक स्टेट बाकी स्टेट के बावजूद भी उनके अलावा भी अपनी एग्जिस्टेंस बरकरार रख सकता था. तो इसमें जो बाकी स्टेट्स थे, सो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन फॉरेन पॉलिसी एंड इन एस्टेब्लिशिंग फॉरेन रिलेशंस विद अदर स्टेट्स. एज अ रिजल्ट दे वर एडॉप्टिंग अ पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन. इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो यूएसए की है कि यूएसए वाज नॉट इंटरेस्टेड इन अदर कॉन्टिनेंट्स
in other countries, rather it was only limited to its own states. Now, the second feature of traditional diplomacy is that it did not include the small states and was revolving around the big powers in Europe. काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है इसमें छोटी ताकतों को, छोटे ममालिक को कोई पावर नहीं दी गई, ना उनके साथ इनका कोई ताल्लुक था। ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में यूरोपियन की जो कुछ बड़े पावर्स थे सिर्फ उनके साथ डील किया जाता, सिर्फ वही इस डिप्लोमेसी में शामिल थे, विच मीन्स द ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी वॉज डन, इट वॉज कंडक्टेड बाय द बिग पावर्स while the small powers were not invited to diplomacy. आखिर क्यों ऐसा हुआ? Why the small powers were not involved? इसका आंसर आप इसके ऊपर सोचें and we will come to the answer in some time. Let's ask a simple question. The question is, can you name some big powers at that time? अगर traditional diplomacy was only conducted between or among the big powers, so can you name some of the big powers of Europe at that time? जी, आंसर कुछ सिंपल है, कुछ आपको आते होंगे। आंसर इसके हैं, इंग्लैंड was one of the big power, France was one of the big power, Austria Hungary was a big power, Prussia was a big power and Spain was a big power. इसके अलावा हॉलैंड भी है, इसके अलावा बेल्जियम भी है, लेकिन ये प्रूशिया का वर्ड जो मैंने यूज किया है, सो कैन यू रिकॉल कि प्रूशिया किस कंट्री का नाम था? विच कंट्री ओल्ड नेम वाज प्रूशिया? yes, it was representing the state of Germany. So Germany, which was earlier called Prussia, was again a big power at that time. So the traditional diplomacy was conducted between these big powers and the smaller states were not involved. Now, as I already asked you the question, that why the small states were not involved? आखिर उनके साथ ये ज्यादती क्यों की गई? क्यों स्मॉल स्टेट्स को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता और उनको कोई लिफ्ट नहीं कराई जाती? And they were ignored, they were neglected. So why was this in the traditional diplomacy? इसका आंसर काफ़ी डिफरेंट है. इसका आंसर ये है कि at that time it was regarded that the big powers are responsible for the world peace. दुनिया के अमन के लिए और रीजन के अमन के लिए ये जो बिग पावर्स हैं इनका बड़ा ज़्यादा रोल है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए रिलेशंस भी इन्हीं कंट्री के साथ रखे जाएं. So as they are important, they have many relations, they have much role to play in the world peace. Therefore, the traditional diplomacy was confined to these big powers, while the small powers, because they are nobody, they are not having any role. उनके पास पावर की कमी है, उनके पास हैसियत नहीं है, इसलिए उनका कोई रोल ही नहीं है इंटरनेशनल पीस में या वर्ल्ड पीस में. उनकी मिसाल तो शतरंज के प्यादों की तरह है, जो कि नंबर में तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन पावर उनके पास बिल्कुल नहीं है. सो द स्मॉल पावर्स वर यूज्ड एज अ पॉन, एज अ वेट्स, and they were not given any due role, they were not given any importance in the traditional diplomacy. So you can see the answer that small states were regarded as having no role in the world peace or the major policy at that time. They were treated like pawn in a chess game, while the major powers have greater responsibility. So they must be contacted, they must be consulted, and they must be involved in foreign relations and diplomatic activities. The third property or the characteristic or the feature of traditional diplomacy is that diplomatic services was taken as a profession, and specific training and standards were developed for diplomatic officials. The diplomats were regarded important for world peace. तो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में जो सफारतकारी है उसको बाकायदा एक पेशा माना गया. It was regarded as a profession, it was regarded as a business, and people were specifically trained for that profession.
rather it was conducted in the aristocratic families. जो बड़ी families थी, जो aristocrat थी, जो higher class थी, वहाँ से diplomats लिए जाते और वो बाकायदा उनकी शुरू से ही तरबियत की जाती और उनको ट्रेन किया जाता in the art of diplomacy, in the art of negotiations. And the diplomats were again very respected. They were regarded very important for the world peace because it is through diplomats that the foreign relation is conducted. तो अगर diplomats foreign relations में इतना उनका अहम रोल था, उतनी उनकी अहम हैसियत थी, तो लिहाजा वो अमन के मामले में काफ़ी अपना रोल अदा कर सकते हैं, वो अमन को ला सकते हैं। और अगर उनकी पावर, वो अपने पावर को मिसयूज़ कर देते हैं या वो सही तरीके से निगोशिएशन नहीं कर लेते, जिसकी वजह से कशीदगी पैदा हो जाती और जंग का ख़तरा होता। सो दिस वर सम ऑफ द डिप्लोमेसी। नाउ लेट अस कम टू द फोर्थ फीचर ऑफ ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी। ये भी काफ़ी एक इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी वॉज सीक्रेट, इट वॉज नॉट ओपन टू पब्लिक। आखिर मतलब क्या है इसका कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी खुफिया थी, आम लोगों को इसके बारे में नहीं बताया जाता, उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। जो भी बातें होती, जो भी मुआहदे होते, जो भी डिस्कशंस होते, जो भी ऑफिशियल रिलेशंस होते, तो वो सारे खुफिया थे। वो लोगों की नज़रों से और लोगों के इल्म से, लोगों के मालूमात से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, लोगों को उनके बारे में कोई आगाही हासिल नहीं थी। So only the diplomats and the royal family would know about the diplomatic relations and the different kind of agreements or the treaties and not the general public. Now the question is, why it was kept secret? आखिर इसको खुफिया क्यों रखा जाता, क्यों आम लोगों को इसके बारे में नहीं बताया जाता? तो आप इसके बारे में सोचें कि आखिर क्यों उस वक्त आम लोगों को इसके बारे में नहीं बताया जाता। आप समझ सकते हैं कि उस वक्त लोगों के पास इतने ज़्यादा हकूक़ नहीं थे। क्यों नहीं थे? इसीलिए कि उस वक्त मोनार्ची का ज़माना था, उस वक्त किंगशिप था, उस वक्त प्रिंसेस थे, उस वक्त रॉयल फैमिलीज थे। सो द पावर ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन was not very much influential. The people were ignored, they were not given rights. The king and the princes were powerful, so they were controlling all the institutions and all the organizations. तो जब लोगों के पास हकूक़ नहीं थे, उनके पास इतने राइट्स नहीं थे, इसलिए उनको मालूमात भी नहीं दी जाती, उनको इग्नोर किया जाता, क्योंकि बादशाह ही सब कुछ था, उसी के पास सब कुछ पावर थी। So this is one of the good reason. So the monarchical forces were strong. Public were not interested in foreign affairs. तो अगर एक तरफ बादशाह के पास पावर ज़्यादा है और वो लोगों को बताना नहीं चाहता, वो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, तो दूसरी तरफ लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं था। They were not interested in knowing about what is happening at the international affairs or in the international world. They would not take and would not mind whatever is happening of the country with other countries. And therefore, again, what was another reason is that the means of communications were also not very much developed. जब आमदोरफ्त के ज़राए कमज़ोर थे, वो इतने इम्प्रूव नहीं थे, जिसकी वजह से भी इंफॉर्मेशन का तबादला नहीं हो जाता, लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं आती, सिर्फ इंफॉर्मेशन डायरेक्टली किंग या प्रिंस के पास पहुंचती और बाकी जो अवाम है, जो बाकी ग्रुप्स हैं, उन तक इंफॉर्मेशन का कोई ज़रिया नहीं था। देयर वॉज नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू गिव देम द इंफॉर्मेशन, एंड एज अ रिजल्ट द पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड। एंड विद दिस, बिकॉज द प्रिंस or the king, he would negotiate, he would maintain relation with other countries for his own benefit, for his own personal interest, for the interest of his family, for the interest of his royal family. Therefore, he would not be interested in telling the other people about whatever is in his interest.
तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए चूंकि सब कुछ कर रहा होता, इसलिए वो नहीं समझता कि बाकी लोगों को इसके बारे में बताया जाए. As we already know, at that time the national interest was the interest of the king. उस वक्त कौमी मफाद को बादशाह का मफाद कहा जाता, या बादशाह का जो मफाद है उसको कौमी मफाद कहा जाता. The fifth feature of traditional diplomacy is that diplomats have more freedom to negotiate and greater discretion. उस वक्त जो डिप्लोमेट्स थे उनके पास ज़्यादा ताकत थी, उनके पास ज़्यादा आज़ादी थी. They were free to negotiate. They were free to arrive at different types of settlements. They could go to different extent in negotiations. तो चूंकि उनके पास पावर ज़्यादा थी, उनके पास ज़्यादा मर्जी थी अपने फैसले करने की, इसलिए ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में the diplomats were very powerful as compared to the diplomats in the modern diplomacy, जहाँ पे उनके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है. Now, why this was so? Why they have more power? And we would try to know this answer as we go along with this chapter. So the public would not know about negotiations. We already discussed that कि बाकी जो आम लोग हैं उनको इनके बारे में जो पब्लिक रिलेशंस हैं, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, ऑफिशियल रिलेशंस हैं, उनके बारे में उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी. Settlements and moment of threats. The diplomats would conduct negotiations secretly with greater freedom and convey the decision to their governments because the means of communications were not well developed and traveling was time consuming. तो आपको नज़र आ रहा है कि क्यों उनके पास इतनी ज़्यादा पावर थी. उनके पास पावर इसलिए ज़्यादा थी कि उस वक्त जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे वो इतनी इम्प्रूव नहीं थे. काफ़ी ज़्यादा फासला था बिटवीन द स्टेट्स एंड इट वुड टेक मोर टाइम टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट. तो अगर एक डिप्लोमेट बात कर रहा होता, उसको आज़ादी दी जाती कि वो अपने तरीके से उसको निगोशिएट करे, क्योंकि अगर वो वहाँ से वापस मशवरा लेने के लिए अपने मुल्क में आए और फिर जाए तो इस पर जितना टाइम लगेगा तो उसमें जो डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं तो वो वहाँ पे रह ही जाते. इसीलिए उसके पास पावर ज़्यादा थी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के कमज़ोर होने की वजह से. इसी के साथ जो स्टेट्स था, सो इट विल आल्सो ट्राई दैट द डिप्लोमेट्स आर गिवन दैट पावर so that because they can use their intellect for the betterment of country and to negotiate well in that particular reason. चूंकि डिप्लोमेट्स के पास ज़्यादा आज़ादी थी तो वो अपने तरीके से अपने फैसले कर लेता, वो अपने तरीके से जिस तरह चाहते फैसला कर लेता, क्योंकि एक तो पब्लिक को उसकी रसाई भी नहीं थी. इट वॉज ऑल सीक्रेट. सो इवन इफ ही कैन डिसाइड एनीथिंग विच इज़ नॉट वेरी गुड, but still that will be kept secret, and he can exercise all his power because the means of communications, as I already discussed, they were not very much developed. तो इतना रिस्क नहीं लिया जा सकता कि ट्रैवलिंग पे सारा टाइम चला जाता और जिसकी वजह से उस मौके की जो अहमियत थी वो ख़त्म हो जाती.